Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, we praise Allah and we glorify Him as He is ought to be praised and glorified. And we send blessings and salutations to all the prophets, especially the last of them all, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I welcome all of you to today's session on teaching in the time of COVID-19. Alhamdulillah, the target and the limit that we set for registration was exceeded, and there was tremendous response from your side, mashallah. So finally we decided to convert and turn our e-workshop into a live webinar, so that more and more people can benefit from this session. So first of all, we welcome all of you, and then we pray to Allah to make our session effective and successful, inshallah. All right, so let's begin. The session is being conducted under the umbrella of Spectrum Professional Development Center. And this is the title of our session today, Teaching in the Time of COVID-19. Basically, the scenario and the background, we all know that all over the world, the humanity is facing a crisis. This is not just a crisis in Pakistan or in any other country, but this is a crisis all over the world. So people are working on different walks of life, on different aspects of human activities to make them sustainable, to make them possible in these days of crisis. So when everyone is working, so why not the teachers, and why not the educationists and the people who are working in the education sector? There is a big responsibility on their shoulders that they should think about it. They should devise some strategies. They should work on solutions to make an uninterrupted education a successful reality. And keeping all that in view, we have decided to have this session today with all of you. And before moving on to the core of session, I would like to make few things clear. First of all, we have decided that we would be talking in both the languages, English and Urdu. We will be bilingual, so that the people who cannot understand English well, or who are not proficient in English language, so they can also benefit well from this entire webinar, because the objective is to give you some solutions and to help you manage your teaching in these days of crisis, inshallah. तो दोनों जबानों में हमारी बात रहेगी, इंग्लिश भी साथ साथ चलेगी, टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे, और जो रेलेवेंट चीजें हैं वो इंग्लिश में साथ होंगी, और उर्दू भी साथ में सिलसिला कलाम जारी रहेगा. तो अब बिला ताखिर हम सेशन का आगाज करते हैं. So this is something about my own self, my little introduction. I'm Sharjeel Ahmed Khan, and I have the privilege of having MIE, Microsoft Innovative Educator Certificate, and some other certificates also from Microsoft. This was initial that I received by going through the process that inshallah I will share with all of you today. आज मैं वो पूरा process भी आप सबके साथ share करूँगा, जिसके जरिए आप जिसे उसको follow करते हुए आप खुद भी बासानी Microsoft Innovative Educator बन सकते हैं और अपनी professional development के सफर को बरकरार रख सकते हैं. I have a diverse background. I have masters in more than one fields. And my specialization is going to be in leadership and management in AMPhil, inshallah, very soon. And I have done masters in Islamic studies, in education, and in theology. And with that, I have a flair of writing, and I have the privilege to get one of my articles published in a magazine across the border in India, Teacher Plus magazine, Utopia of the Untrained Mind. ये available है मेरा article इनकी website पे, Teacher Plus की जो website है वहाँ आप देख सकते हैं. So I have been in the profession of teaching and training for more than 6 years. I have been working on this. I conducted sessions on multiple topics across Pakistan, and I hope I would do something better for all of you today, inshallah, on this live webinar. So if you want any detail regarding my profile, you can have a look on this slide later. तो अब सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं सेशन के, उसको एक नजर देख लीजिए. The first objective is that you will be able to understand the dynamics of teaching in the wake of COVID-19. इस COVID-19 के दिनों के अंदर अब जो टीचिंग के डायनामिक्स हैं वो आप जरा समझ सकें, और क्राइसिस के दिनों में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे.
Then we'll move toward the core, and that the core in the sense क्योंकि हम tools के ऊपर बात करने जा रहे हैं, so we'll be having inshallah the opportunity to learn the use of some robust tools for teaching and assessing online teaching और assessment का जो पूरा एक mechanism है उसको आसानी चलाने के लिए बहुत जबरदस्त किस्म के टूल्स मौजूद हैं। तो हम कुछ टूल्स की बात करेंगे क्योंकि वो बहुत सारे हैं, तो वी विल बी हैविंग अ लुक एट सिलेक्टेड टूल्स जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं, तो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं और आपको भी मैं दिखाऊं कि वो कैसे इस्तेमाल करके आप घर बैठे अपने टीचिंग और असेसमेंट के पूरे मैकेनिज्म को आसानी चला सकते हैं और अपने स्कूल को भी हेल्प कर सकते हैं। इवन प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर जो फील्ड में है वो भी अपनी अपनी टीम को हेल्प कर सकते हैं और टीम उन्हें हेल्प कर सकती है और आप सब मिलकर पेरेंट्स को और बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। Then we will move toward and we will have a look on this side also that how you can save your online teaching from becoming a failure। तो वो कुछ चीज हम आपसे बयान करेंगे जो बहुत जरूरी है आपको याद रखना, ताकि आपका जो सेशन है वो फेलियर ना बने बल्कि एक सक्सेस बने। Then finally to help you explore the ways to continue growing as a tech savvy teacher, और ये मैंने जैसे शुरू में आपसे अर्ज किया कि मैं खुद Microsoft Innovative Educator सर्टिफाइड हूँ, तो पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप भी बासानी उसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जब आप चलेंगे तो आप खुद भी उस लेवल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। बट वो किसी खास सर्टिफिकेशन की नीयत से नहीं होना चाहिए, ऑल्दो उसमें आपको बहुत सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, बट आपकी पूरी तवज्जो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे होनी चाहिए ताकि आप में स्किल्स पैदा हो। बिकॉज सर्टिफिकेट हमारी प्रोफाइल में हेल्प करता है, बट हमारी असल पहचान हमारी स्किल्स से होती है। अगर स्किल्स हमें पैदा ना हो और सर्टिफिकेट्स बहुत सारे हों तो कोई फायदा नहीं। Alright, so let's begin. Let's begin with a quote, a wonderful quote that I like most, और ये एक ऐसा समझे एक कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमारे दिल की बात है। Who dares to teach must never cease to learn। जॉन कॉटन डैना, he was a librarian in a college in America। उन्होंने ये बड़ा अच्छा कोट कहा था और उनकी ये बात है कि who dares to teach must never cease to learn। वो कहते हैं कि जो इंसान टीचिंग की, पढ़ाने की, सिखाने की हिम्मत कर ले, उससे लर्निंग से, सीखने से घबराना नहीं चाहिए, उसे सीखने का सफर खत्म नहीं करना चाहिए। We must not stop learning। यूं कह लीजिए कि अगर हमारे बहैसियत टीचर हमारे सफर में, हमारी जिंदगी में कहीं ऐसा वक्त आ गया कि हम ये समझे कि we have 10 years of experience, 20 years of experience, so right now we have learned a lot and we don't need to learn anymore, हम तो बल्कि अब सिखाने जा रहे हैं, अब हम क्या सीखेंगे? So that is the death of teacher। ये मैं अपने अल्फाजों में कहता हूं, उस तरह के टीचिंग लिटरली डेयरिंग है। तो हमने, आपने जो अपने कंधों पे हमने काम लिया, जिम्मेदारी ली है हमने, और हमारे साथ जो दीगर टीम कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स की होती है, तो हमने सिखाने की जो जिम्मेदारी ली है, यकीन जाने ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हमने कंधों पे ले ली है। उसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए। डेयरिंग क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें इतना हमें लर्न करना होता है कि शायद एक आम जो एक सिर्फ तालिब इल्म है उसके लिए वो लर्निंग की उतनी उसकी कैफियत नहीं होती जितनी हमारी बरकरार रहना जरूरी है। बिकॉज वी आर इन द एरिना ऑफ टीचिंग, सो वी मस्ट नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारी पहचान है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी basic relationship with our Islamic ideology in that sense also। One of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam goes this way: al kalimatul hikmah dalatul mu'min fa haythu wajadaha fa huwa ahaqqu biha। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिकमत की बात मोमिन का गुमशुदा खजाना है, वो जहां पाए उसको हासिल करने का हक रखता है, यानी वो उसका राइट है। तो इस तरह हम राइट के आगे कोई बात नहीं सुनते और अपना हक छीन के भी ले लेते हैं। तो ये हिकमत की जो बात होती है, जो विजडम है ना, इसके तो हमें हर वक्त तलाश में रहना चाहिए। दैट्स व्हाई वी से दैट मुस्लिम इज अ कांस्टेंट सीकर ऑफ अ वर्ड ऑफ विजडम। वैसे तो हर एक इंसान को सीखना है, समझना है, लेकिन अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से देखें तो ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और हमें हर वक्त विजडम की अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना चाहिए। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू मोटिवेशन बिगिंस फ्रॉम हियर। One of the most important thing that all of us must keep in mind, आगे बढ़ने से पहले सारी चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि बाज़ दफा हम डायरेक्टली जंप करते हैं ट्रेनिंग के अंदर और हमारे assumptions, हमारे तसव्वुरात, हमारे अंडरलाइन बिलीव्स जो है वो करेक्ट नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई उनको भी क्लियर करना साथ साथ जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि इफ यू वांट टू लर्न, स्टार्ट बाय अनलर्निंग। अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले अनलर्न करो। क्यों है ऐसा? बारहा ऐसा होता है, अब ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। बारहा ऐसा होता है कि हमारी जो प्रीवियस लर्निंग होती है, बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि उससे हमें हेल्प मिलती है मजीद लर्न करने में, क्योंकि हमारा एक नॉलेज बेस बन जाता है, तो हमें उससे हेल्प होती है मजीद कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में। लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि हमारी प्रीवियस लर्निंग हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है।
जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें कोई एरर नहीं है, वो साबित हो चुकी है, एक्सपीरियंस से प्रूव हो चुकी है, अपने तौर पर जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारी नॉलेज वो करेक्ट है और वो बिल्कुल प्रूवन है और अब हम आगे बढ़ के बल्कि वो दूसरों को देंगे, हम क्या लेंगे, तो ये जो लर्निंग आपकी है ये रुकावट बन जाएगी मजीद सीखने में. सो दैट्स व्हाई वी explain it this way. Knowledge sometimes serves as a barrier for further knowledge. कि बाज दफा आपका मौजूदा इल्म मजीद इल्म के रास्ते में रुकावट बन जाता है. ये बाज दफा, हमेशा हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन ये मैं चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने भी कुछ अंडरलाइंग एजम्पशंस, हमारे मफरूजात हैं कुछ बच्चों को लेकर, तालीमी निज़ाम को लेकर और क्लासरूम को लेकर, स्कूल मैनेजमेंट को लेकर, तो हमें अपने एजम्पशंस को चेक करना है, उस पर भी सवाल उठाने हैं, उस पर भी क्वेश्चंस को रेज करना है कि वो क्या है, उस पर एविडेंस कितना है हमारे पास, ठीक है, वो कितने मजबूत है और क्या वाकई वो इतना ज्यादा उस पर एविडेंस है कि उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है. तो इस तरह के सवालात हमें अपने आप से करने चाहिए. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी नॉलेज हमारे अंदर मौजूद है जो हमें मजीद सीखने से रोक रही है. दैट्स व्हाई हमेशा हम किसी भी सेशन को जब शुरू करते हैं हम कहते हैं आपका जो एग्जिस्टिंग अब तक का नॉलेज बेस है, उसका जो बटन है, जो उसको स्विच है, उसको ऑफ कर दें और आप जो कुछ भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उसको बिल्कुल फ्रेश आई से देखें. अब यूं समझिए कि पहले कुछ आपके पास जहन में नहीं था, अब ये एक नई चीज आपके सामने है, ताकि आप उसको हमारी जो जिस रूह के साथ और जिस स्पिरिट के साथ हम उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए और आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रीवियस नॉलेज बेस है वो उसके रास्ते में रुकावट ना बने. हाँ, ये जरूर है जब सेशन खत्म हो, जब आप उसको फिर से गौर करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, तो फिर आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के जरिए उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं और उसको भी मजीद रिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं. बट ये तभी होगा जब आप वक्ती तौर पे अपना इनिशियल और ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज बेस का जो स्विच है उसको ऑफ कर दें. तो ये हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं. अनलर्न को अगर लेक्सिकली देखें तो उसका मतलब है डिस्कार्ड करना. कोई चीज आपने सीख ली है, उसको डिस्कार्ड करा आपने, स्पेशली अ बैड हैबिट. देखिए, आपको गुड हैबिट का जो कलर है वो अपनी पर्सनैलिटी के लाने के लिए बैड हैबिट को डिस्कार्ड करना पड़ता है. आपको ट्रुथ अपनी पर्सनालिटी पे तारी करने के लिए फॉल्स को आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है. आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन को अपने माइंड पे लगाने के लिए आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना पड़ता है. अगर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन का ही सहारा लेते रहेंगे, जो पहले से चीजें हैं जो अब वक्त और हालात में गलत साबित कर दी हैं, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो, अंदाज हो, बच्चों के साथ डील करने का तरीका, अगर वक्त और हालात ने उनको गलत साबित कर दिया है तो फिर उसको डिस्कार्ड करके हमें कुछ नया सीखना होगा. So when you discard something from your memory like bad habit, false or outdated information, so that is called the process of unlearning and that is essential for everyone. Okay, I hope this is clear. Now let's come to the start of core theme of the session and then we'll move towards the tools also. अब हम बात करना शुरू करते हैं dynamics of teaching in the wake of COVID-19. बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, पूरी दुनिया इस वक्त एक बड़ी आजमाइश से और एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है और एक ग्लोबल क्राइसिस का हमें सामना है. और जिंदगी पर अगर गौर करें तो जिंदगी खुद एक नशेबो फराज का नाम है. कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, तो अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन ये यकीनन एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस हमारे सामने आया जो हमने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, या मुमकिन है हमसे पिछले लोगों ने भी अपनी जिंदगी में इस तरह का क्राइसिस ना देखा हो जो आज हम देख रहे हैं कोविड-19 की सूरत में. अपार्ट फ्रॉम दैट कि कोविड-19 का पूरा मैकेनिज्म किस तरह काम करता है और किस तरह दुनिया में फैल रहा है, क्या मामलात हैं और क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो सब एक तरफ. और जाहिर सी बात है वो पूरा हमारा मौजू नहीं है. हमारा असल बात और मौजू ये है कि हम टीचिंग के डायनेमिक्स को देखें कि जो कोविड-19 निकल आया है तो अब टीचिंग के डायनेमिक्स क्या है, टीचिंग की खदोखाल अभी क्या है, तो टीचिंग किस तरह अभी मूव करेगी, किस तरह मूव कर रही है. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट, राइट. सो वी आर टेकिंग कोविड-19 एज अ क्राइसिस एंड राइट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू मैनेज आवर जॉब, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सक्सेसफुली एंड इफेक्टिवली इन ग्लोबल क्राइसिस. तो ये हमारा कोर फोकस है. अच्छा, अब उस समझने के लिए ये आपके सामने पॉइंट्स मैं रखता हूं जो बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि बेसिकली व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू व्हेन वी आर फेस्ड विद अ क्राइसिस. देखिए, क्राइसिस जिंदगी का एक नेचुरल एक फिनोमेना होता है, यानी जिंदगी में क्राइसिस आता है. अब क्राइसिस के लेवल्स अलग अलग होते हैं. कोई नेशनल लेवल पे आ रहा है, कोई आपको अपने इलाकाई सतह पर आपको क्राइसिस आता है, कभी आपके घर में होता है,
कभी आप पूरी दुनिया में जिस तरह हम फेस कर रहे हैं, कभी कोई क्राइसिस की फॉर्म फाइनेंशियल होती है, कोई सोशल होती है, कोई एजुकेशनल वगैरह वगैरह। क्राइसिस कोई भी हो, हमें पॉजिटिवली रहते हुए पॉजिटिवली काम करना है और बहुत तरीके से अपने आपको ये देखना है कि हम क्राइसिस को रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो अब मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखता हूं जो हमें अपने सामने रखना जरूरी है क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग इज रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द क्राइसिस। पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मुश्किल आ गई है, मतलब अब उससे कोई छुटकारा नहीं है, कोई इससे हम हम आंख बंद नहीं कर सकते, उससे आंखें नहीं चुरा सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक चीज है तो है, पूरी दुनिया में हमें नजर आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द क्राइसिस एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग द रियलिटी। आपको सबसे पहले हकीकत को तस्लीम करना होता है कि हकीकत है, उसको आप तस्लीम करें। देन द सेकंड स्टेप इज कंट्रोल ऑन योर नर्व्स एंड स्टे काम। अब आपको अपने आप को कंपोज करना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को वक्त के हवाले नहीं करना है, बल्कि हालात और वक्त को मैनेज करना है, अपने कंट्रोल में रहना है और देखो कि कैसे तुम अपने कदम आगे बढ़ा सकते। सो वी हैव टू कंट्रोल ऑन आवर नर्व्स, वी डोंट नीड टू बी इमोशनल, नीड टू बी काम एंड कूल, और हमें सोचना है, तभी हमारा जहन काम करेगा। क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो फिर उसमें आपकी जो नर्व्स होते हैं वो आपके काबू में नहीं रहते और जो सिलसिला है वो फिर आपके काबू से चीजें बाहर हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू कंट्रोल योर नर्व्स एंड देन वी हैव द थर्ड एलिमेंट, look at the loopholes being identified as a result of crisis। देखिए ये सबसे पॉजिटिव साइड होता है किसी भी क्राइसिस का। जब क्राइसिस आता है किसी भी सूरत में, फाइनेंशियल हो, घरेलू हो, किसी और फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो आपके अंदर जो कमजोरियां होती हैं और जो लूप होल्स होते हैं और जो वीकनेसेस होती हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं। तो क्राइसिस आपकी लूप होल्स जिससे आप नजरें चुरा रहे होते हैं वो सब सामने आ जाते हैं। तो इसी तरह इस वक्त में भी जो कोरोना वायरस का और जो कोविड-19 का पूरा ग्लोबल सीन आपको नजर आता है, तो इसमें हमारा जो पूरा निजाम है तालीमी, उसके जो लूप होल्स हैं, जो उसमें जो वैक्यूम मौजूद है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे खुल के आ गए सामने और उसकी जो वीकनेसेस हैं वो सामने आ गए। इस पर हम अभी आगे मजीद बात करते हैं। तो ये तीसरा काम आपने करना है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है अब प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं, ठीक है। आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया, आप काम रहे, आपने दुआ की, अल्लाह ताला से मदद मांगी, आपने एफर्ट की। और तीसरा आपने क्या, आपने देखा कि आपने अब ये देखा कि भाई वीकनेसेस क्या थी, वो मुझे अब नजर आ गई हैं, अब उन पर मैंने तवज्जो देनी है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, कंडक्ट अ सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस में आप क्या करते हैं, 4 स्टेप्स हैं। यकीनन हो सकता है, मुमकिन है आप लोग इससे ऑलरेडी वाकिफ हों, तो जिन्हें नहीं इसका इल्म है उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, बाकी जो जानते हैं उनके लिए एक तरह से यादा हो जाएगा, तो फिर से इनको उनके जहन में चीज हाजिर हो जाएगी। सॉट एनालिसिस बेसिकली 4 स्टेप्स का एनालिसिस होता है। इसमें आप पहले क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं, देन वीकनेसेस, देन अपॉर्चुनिटीज एंड देन थ्रेट्स। आप अब जब क्राइसिस आ गया तो 4 चीजें अपनी देखें। आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस हाल में, इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर आप कहां स्टैंड करते हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेसेस अभी क्या है, आपके पास इस बुरी कैफियत में और इन हालात के अंदर भी, इन क्राइसिस के हालात में भी आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही है और आपको क्या थ्रेट्स नजर आ रहे हैं। इन चारों चीजों को देखकर आपने अपने पॉइंट्स लिखने होंगे अपने पेपर पे और आप अपना एनालिसिस करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं, उनका स्कूल का स्टैंड करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अपने घर का एनालिसिस करे, इसका घर का स्टैंड करता है, उसकी फैमिली का स्टैंड करती है। तो शॉर्ट एनालिसिस बहुत सिंपल अंदाज में आप अपना एक बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट चारों लिखें ताकि आपको अपनी पिक्चर क्लियर हो कि अभी आप कहाँ स्टैंड करें। एंड देन द 5th स्टेप इज कंसल्ट विद पीयर्स एंड अदर्स इन द फील्ड। यकीनन ये क्राइसिस अकेले आप पर तो नहीं आया, कई और लोगों पे भी आया, पूरी दुनिया में आया। तो आपकी फील्ड में जो और लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें, उनसे कंसल्टेंसी मिले, उनके सामने रखिए भाई आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो कंसल्ट विद पीयर्स। जब आप अपना खुद एनालिसिस कर लेंगे तो फिर आप मुशावरत करेंगे भाई अब आगे से कैसे चलना है, और फील्ड में लोग मौजूद हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनसे पूछें, बात करें, आगे के आइडियाज निकालें, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर सकते हैं, नए आपके पास आइडियाज आएंगे और आप कोलैबोरेटिवली मिलकर काम कर सकते हैं और लोगों के साथ। एंड देन द फाइनल थिंग इज मूव ऑन विद द सॉल्यूशन। जब इन 5 स्टेप से गुजरने के बाद आपकी पिक्चर आपको क्लियर होगी, आपके पास आपको कुछ सोल्यूशन नजर आ रहे होंगे, तो आपने सोल्यूशन को पिक करना है और उसको लेके आगे चलना है, उसको टेस्ट करना है, आपने उसको एक्सपेरिमेंट करना है और फिर एक्सपेरिमेंट करते करते उसके लूप होल्स को, उस सोल्यूशन में भी जो लूप होल्स हैं उसको दूर करना है।
तो ये किसी भी क्राइसिस को, अब चाहे कोविड-19 की हम बात करें और उस कोविड-19 में अपने एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो ये 6 चीजें बहुत अहम है कि सबसे पहले आपने अपने क्राइसिस को रिकॉग्नाइज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। नंबर 2, आपने इमोशनल नहीं होना है, काम रहना है, कूल रहना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा भी रखना है, उससे दुआ भी करनी है। नंबर 3, आपने अब जो क्राइसिस में आपकी पोजीशन वाजे हो गई, लूप होल्स आपके सामने आ गए, उन पर नजर रखनी है और फिर आपने अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये चारों चीजें आपने लिखनी होंगी अपनी। और फिर आपने फील्ड में मौजूद लोगों से मुशावरत करनी है, पीयर्स के साथ बात करो। पीयर्स वो आपके कोलीग्स होते हैं जो आपके साथ आपके इदारे में काम कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन में आपके साथ हैं। मूव ऑन विद द सोल्यूशन, फिर आखिर में आपने सोल्यूशन को पिक करके, क्योंकि जब इन 5 स्टेप्स से आप गुजरेंगे तो आपके पास सोल्यूशन मौजूद होगा, उसको फिर आपने टेस्ट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको फिर वक्त के साथ साथ उसको इंप्रूव करना है। सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी need to do while facing any sort of crisis. चलें, अब हम बात करते हैं वेक ऑफ कोविड-19। अभी कोविड-19 का जो वेक हुआ और जो ये उभर के सामने आया, इसकी पॉजिटिव साइड, चूंकि हमने आपके सामने बात कर ली है कि आपको क्या चीजें सामने रखनी है कभी भी क्राइसिस को फेस करते हुए, और वो सारा रखें बातें अपने सामने। और अब ये 2 चीजें देख लें। नंबर 1, the wake of COVID-19 has shown us the loopholes of our प्रिवेलेंट एजुकेशनल सिस्टम। हमारे मौजूदा तालीमी निजाम जो चल रहा है हमारे मुल्क में, उसके जो लूप होल्स थे वो खुल के सामने आ गए कि हम किस तरह मूव कर रहे थे, हमारी क्या तैयारी थी। सब अचानक आप देखें इदारों ने अपने सेटअप लगाना शुरू किए, अब जाके सब तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आप देखें टेक्नोलॉजी कब से हमारे पास है, कब से हम टूल्स को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, और पता नहीं कितने, एक लेमैन के लिए अगर आप एंगल से देखें, एक आम आदमी के पास कितनी सारी एक्सेस आपको नजर आती है, जो आपको छोटे छोटे से एप्लीकेशंस की सूरत में लोग इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अगरचे वो कोई ज्यादा आपको फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आते और इतने ज्यादा आपको फाइनेंशियली पावरफुल नजर नहीं आते और इतने स्टेबल नजर नहीं आते, स्टिल आप देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो किसी न किसी फॉर्म के अंदर। तो हम ओवरऑल पूरे निजाम को देखें तो हमारी सारी खामियाबाजी हो गई इस कोविड-19 की सूरत में कि हमारी क्या तैयारी थी, हम कहाँ स्टैंड करते थे। कोविड-19 ने सब वाजे कर दिया कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी कि हम किस तरह, अगर ये हमारा ट्रेडिशनल निजाम तालीम जो है अगर ये मुअत्तल हो गया तो हम मूव कैसे करेंगे। तो सारा का सारा जो खाका था और जो कैफियत थी वो सब वाजे हो चुकी है। पूरे मुल्क में एजुकेशन सेक्टर की जो हालत थी वो सब वाजे हो गई, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो। जो हाल है आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम में इस टाइम सब लोग, और किस मुश्किल से वो अपने आप को फेमिलियर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो काश ये पहले हुआ होता तो हमें ये नौबत ना आती और हम तैयार होते कि खुदा ना खास्ता अगर ट्रेडिशनल और जो रिवायती निज़ाम तालीम है अगर वो मफलूज भी हो जाए तो हम जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड और टेक्नोलॉजी असिस्टेड एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको यूज करने के काबिल हो। एंड द सेकंड थिंग इज, ये बिल्कुल आप देखें कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द वेक ऑफ कोविड-19 हैज शोन अस द स्ट्रेंथ एंड वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी in ensuring uninterrupted education despite of a global crisis। इस कोविड-19 ने टेक्नोलॉजी की वैल्यू को आश्कार कर दिया, वाजे कर दिया, उसकी कुव्वत को दुनिया के सामने उसको साबित कर दिया, उसकी कुव्वत को, उसकी अहमियत को बावर करवा दिया कि वाकई टेक्नोलॉजी की जितनी अहमियत है आज कोविड-19 की सूरत में हमारे सामने आ गई कि ये टेक्नोलॉजी ही है कि जिसकी बदौलत आज मैं और आप भी ये सेशन करने के काबिल हैं, बिकॉज वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी, वी हैव इंटरनेट फैसिलिटी। हालांकि हम एक दूसरे से दूर हैं, हम कहीं एक जगह पर नहीं हैं, और जो हम अवेलेबल हैं एक दूसरे के सामने वर्चुअल फॉर्म के अंदर। तो इससे टेक्नोलॉजी की वैल्यू निखर के सामने आ गई, जो अब तक शायद लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। बट इस मुश्किल हाल में भी एजुकेशन को अनइंटरप्टेड रखने में टेक्नोलॉजी का जो किरदार है वो दुनिया के सामने खुल के आ गया। तो ये वेक ऑफ कोविड-19 की पॉजिटिव साइड थी एजुकेशन सेक्टर के लिए कि एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी कितना किरदार अदा कर सकती थी और जो कर रही है वो अब दुनिया के सामने है। बस अब इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर कर लें, टूल्स को सीख लें, ताकि कामयाबी के साथ हम इसको बिल्कुल ऐसा हो जाए कि देखिए लर्निंग के स्टेजेस होते हैं, आप बिगनर होते हैं, फिर आप एडवांस होते हैं, फिर मास्टर लेवल पे जाते हैं, प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो आप जब आखिरी स्टेज पे जाते हैं और प्रोफेशनल बन जाते हैं तो फिर ये आपका बिल्कुल इट बिकम्स सेकंड टू योर नेचर। आपकी बिल्कुल नेचुरल हो जाता है आपके लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करना बहुत इजी हो जाता है टेक्नोलॉजी में आपके लिए, बिकॉज you have become familiar and that use of technology has become second to your nature। ये कब होगा? जब आप बार बार यूज करेंगे और उसके आदी हो जाएंगे और उसको सीख लेंगे।
So that was the positive side of for education, for technology in the perspective of COVID-19. अब आप ये सारी बातें मेरी सुन चुके, अब आप अगली स्लाइड को देखें और कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में इसको पढ़ें कि अगर हम कौन से साइड पर खड़े हैं, हम लेफ्ट पे हैं, राइट पे हैं, कहां पर हैं, हम देखें. सो लेट्स हैव अ लुक. दिस इज वन ऑफ द कोर्स ऑफ डॉक्टर रे एंड द कोट इज टेक्नोलॉजी वॉन्ट रिप्लेस टीचर्स. एक डिबेट बात की जाती है कि क्या टेक्नोलॉजी जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, हर एक की एक्सेस में होगी, तो क्या टीचर्स का रोल खत्म हो जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी के जरिए खुद ब खुद सारे काम हो जाएंगे, रोबोट्स पढ़ाना शुरू कर देंगे? ये सारी बातें एक तरफ, ये पूरी डिबेट एक तरफ, बट बात यह है कि टेक्नोलॉजी वॉन्ट रिप्लेस टीचर्स. टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, उस्ताद को टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती. लेकिन अगली बात सुन लें, उसमें असल बात, मैसेज और पैगाम है और सीखने की बात है. बट टीचर्स हु यूज टेक्नोलॉजी विल प्रोबेबली रिप्लेस टीचर्स हु डू नॉट. लेकिन ये जरूर है कि वो टीचर्स जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें रिप्लेस कर देंगे जो नहीं करते. इसका मतलब ये है कि अगर आज टीचर्स अपने आप को टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के यूज को नहीं समझेंगे, उस पर ग्रिप नहीं अपनी बनाएंगे और उसके साथ फ्लेक्सिबल नहीं होंगे और कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो फिर वक्त के साथ साथ वो टीचर जो टेक्नोलॉजी से दूर है, उनका जो करियर है वो डाउन पे चला जाएगा और उनकी जो अहमियत है यकीनन कम पड़ जाएगी उनके मुकाबले में जो टेक्नोलॉजी आती है. तो खासतौर पे आज के दौर में अगर आप देखें, इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर वो टीचर्स बआसानी अपने सिलसिले को चला रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, और जो टेक सेवी नहीं है, टेक सेवी की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, टेक सेवी टीचर्स वो टीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर हैं और उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसके साथ वो चलना जानते हैं, और चलना अगर नहीं भी जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो सीख रहे हैं उसको. तो इसलिए अगर हमारे अंदर ऐसी सोच मौजूद है कि हम कहते हैं नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, बस इससे दूर, मुझे मैं इसमें कंफर्ट फील नहीं करता, तो ये सोच हमें इसको खत्म करना होगा और हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फेमिलियरिटी बढ़ानी होगी और अपनी स्किल्स को, टेक सेवी स्किल्स को अपनी बढ़ाना होगा. तो फिर ये यकीनन होगा कि आपकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, बिकॉज आपके पास भी टेक्नोलॉजी का यूज जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद होगी. सो दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, बट टीचर्स जो टेक्नोलॉजी जानते हैं उनको रिप्लेस कर देंगे जो टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स, ये पूरा जो पार्ट है आप बहुत गौर से इसको समझ लें, ठीक है? मैं बीच में एक ब्रेक भी दूंगा एक सेशन में और उसमें कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे, बट बिफोर दैट ये सारी बातें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर अ टीचर, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, और जो भी आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं अपने इदारे में, तालीमी इदारे में, ये चीजें आपको जब आप नजरों के सामने रखेंगे तो आपका जो टीचिंग प्लान है वो फेलियर से बचेगा, ठीक है? क्योंकि इफ यू आर हैविंग एनी ऑनलाइन सेशन, दैट इज नॉट ए गारंटी कि वो कामयाब हो जाएगा. आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो लाजमी नहीं है, अगर आप सीख भी लेते हो तो लाजमी नहीं कि कामयाब हो जाएंगे आप. तो कई बार ऐसा होता है, पिटफॉल्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, और ऑनलाइन काफी लोग इसकी शिकायत भी करते हैं कि हमें ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को चलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम नहीं चला पा रहे. तो इस सूरत में ऐसा होगा कि वो फिर डिजास्टर बन जाएगा, वो बजाय इसके कि फायदा उससे फायदे के बजाय नुकसान होगा. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू कीप इनटू व्यू दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और आगे बढ़ने से पहले इसलिए इसमें मैं बात करना चाहता हूं ताकि मैं आगे जितनी बात करूंगा आप मेरी ये स्लाइड और ये जो पूरी बात है इसको याद रखें और इसी के थ्रू आप अपनी तमाम चीजों को आगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसे आप इस्तेमाल करें. Alright, so the first thing is your diversity matters. In fact, every one of you and all of us have, different background. We have different educational background, professional background. We teach different subjects. We are teaching in different schools. The background of our students is different, okay? And we have different sort of parents. We have different sorts of localities. हमारे स्कूल्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, हमारे इलाके मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारा अपना बैकग्राउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, हमारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ाते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिन पेरेंट्स से हमारा सामना है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिन इलाकों में काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं. और जहां भी आप काम कर रहे हैं और जो आपका जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, साथ साथ आपकी ऑफकोर्स आपके लेवल्स, आपकी क्लासेस डिफरेंट हो सकते हैं. कोई मुमकिन है आज हमारे सेशन में प्री स्कूल या प्री प्राइमरी के लेवल पे पढ़ाते हो, प्री प्राइमरी टीचर्स हो, प्री स्कूल टीचर्स हो, किंडरगार्टन को देखते हो और मॉन्टेसोरियंस हो वगैरह वगैरह. तो वो सारा जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पूरा एक पूरा डोमेन है
उसमें काम कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोअर सेकेंडरी लेवल पे, कुछ मुमकिन ऐसे भी लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया हो जो हायर एजुकेशन और हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इस डाइवर्सिटी को, इस तनव्वुओ को, मुख्तलिफ होने को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लिहाजा मैं जितनी चीजें आपसे अभी आप एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, तो आपने अपनी डाइवर्सिटी को सामने रख के इस्तेमाल करनी है। नथिंग कैन बी वन साइज फिट्स ऑल। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे हम यकीन नहीं रखते कि एक ही चीज सबको एक ही तरीके से काम दे दे, नहीं। तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट पे एक आई रखनी है। कीप एन आई ऑन योर ओन कॉन्टेक्स्ट, कीप इन व्यू योर क्लास लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स and your subject area, your type of school, your parents, the parents you are dealing with, your locality. तो ये सब रखकर आपने सेट करना है, क्योंकि इसको सामने रखते हुए आप जो लेसन प्लान करेंगे अपना, फॉर एग्जांपल आगे मैं आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक शेयर करूंगा बहुत आसान सा, तो वहां भी आपने जब उसको यूज करना है तो आपने कुछ स्ट्रेटेजीज खुद बनानी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर इसका बड़ा एक आसान तरीका मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि कोई भी टूल अगर आपने स्टार्ट यूज करना शुरू किया है तो पहले उस टूल पे जब आपकी ग्रिप हो जाए, फॉर एग्जांपल अभी मैं आगे आपके साथ एक लाइव रियल टाइम डिस्कशन करने का टूल मैं आपके शेयर करूंगा जो आप, जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल सेकेंडरी या प्राइमरी में स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप एंगेज कर सकते हैं। तो कोई भी जब टूल आप गैजेट यूज करें, टूल यूज करें, तो एक मेरी तरफ से टिप ये आप सबके लिए, आप उस पर अपना हाथ बिल्कुल आप उस पर सेट करने के बाद, उसके साथ फेमिलियर होने के बाद, आप इसकी एक छोटी सी क्लिप बनाएं, रिकॉर्ड करें। स्क्रीन रिकॉर्डर मोबाइल फोन्स पे होते हैं, आप उसका पूरा एक ट्यूटोरियल बना लें कि कैसे यूज होगा और उसको समझाने में पेरेंट्स को मदद करें। यानी वो पेरेंट्स के लिए आप एक क्लिप बना लें कि जो पेरेंट्स यूज करेंगे या स्टूडेंट यूज करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो वो चूंकि आप अपने स्टूडेंट को जानते हैं, आप उन्हीं की जहनी सतह को मंदर रखते हो आप 2 मिनट की 5 मिनट की क्लिप पूरी स्टेप एक एक करके लिखें, और इसकी बेहतरीन मिसाल आपको आज के सेशन में आखिर में नजर आएगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर का जो सर्टिफिकेट है उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने स्लाइड बनाई है। इस तरह आप भी उर्दू में बनाएं। आपको इंग्लिश का अगर इश्यू है स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो उर्दू में स्टेप्स लिख लें उस टूल को यूज करने के, जो आप पेरेंट्स के साथ यूज करेंगे ऑनलाइन या स्टूडेंट्स के साथ यूज करेंगे। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है एरियाज नॉट टू मिस। आपने कोई भी टूल जब यूज करना है तो ये 4 चीजें अपनी नजरों में रखें, इसके बगैर आप कोई भी टूल यूज ना करें। सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली लिखें। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में कौन सा आपका लेसन है, तो उसके आपने कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ये आपके पूरे मंथ के आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या है, वो पूरे एक जगह आपने गैदर कर लिए, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें कि आप 1 महीने अपना ऑनलाइन कंटेंट लेके चलेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, मेथोडोलॉजी क्या होगी आपकी। टीचिंग मेथोडोलॉजी उसमें भी डिफरेंट हो सकती है। ऑनलाइन भी लेक्चर्स डिलीवर होते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज भी करवाई जा सकती हैं, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है। तो वो जो मेथड्स हमने टीचिंग के पढ़े हैं, इवन के वो वर्चुअल फॉर्म में भी वो सारे प्रैक्टिस हो सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी जो लोकेलिटी है, आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनके लिए कौन सा टीचिंग मेथड सूटेबल है, उसको आप पहले से सोच के रखें और उसको लिख लें इस्तेमाल करने से पहले। तीसरी चीज, आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप उसको एसेस कैसे करेंगे। तो असेसमेंट के भी आप रखें कि आपने क्या क्या चेक करना है, कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ही ऑफ कोर्स आपको हेल्प करते हैं आपकी असेसमेंट में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के ही जरिए आपका पूरा लेसन प्लान होता है। फिर आप उसके एंड में जब असेस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव जो थे आप पूरे कर पाए नहीं। तो असेसमेंट के मामलात, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकती है जो कि फौरन होती है, ऑनगोइंग होती है। समेटिव ये है कि आप एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ मंथ वगैरह जब आप करेंगे तो आपकी समेटिव असेसमेंट हो जाएगी। तो ये असेसमेंट को आपने गौर से सोच लेना है पहले, ये टूल इस्तेमाल करने से पहले। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन असेसमेंट में माइनर सा फर्क है। कुछ एजुकेशन इसको एक दूसरे के मीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सिनोनिम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और they take it as they have some exchange of meaning in both the terminologies। तो इंटर रिलेटेड भी हैं दोनों ये, और एक साथ भी एक माना में भी इस्तेमाल होती है। असेसमेंट में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कितना कामयाब रहे, अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया आपने नहीं किया, और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं आपके पास, और जो मैंने डिस्कस की, जो फॉर्मेटिव है और समेटिव। इवैल्यूएशन बेसिकली द जजमेंट ऑफ वैल्यू। आपने पूरा प्रोग्राम पढ़ा लिया, ठीक है, आपने 1 मंथ पूरा ऑनलाइन डिलीवर किया, उसके बाद अब आपने देखना है कि पूरा गया कैसा।
how far was it successful. So you are determining the value of your online course, of your online टीचिंग लर्निंग, जो आपने एक महीने पूरा सेटअप बनाया, उस पूरे को आपने चेक करने के लिए कुछ पैमाने लिखने हैं। अभी इवेल्युएशन के पैमाने आप खुद भी बना सकते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स खुद भी लिख सकते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, और इसको आप किसी स्टैंडर्ड, किसी ऑनलाइन अवेलेबल स्टैंडर्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन में आप क्या करेंगे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तशखीस कदर, यानी कितनी कदर कीमत का हामिल आपका पूरा कोर्स रहा, वो आपने पूरा उसको चेक करना है इवेल्युएशन के अंदर। तो इवेल्युएशन आमतौर पे होते हैं काफी देर से, यानी 6 महीने बाद, 5 एंड पे आमतौर पे सालाना बुनियादों पे ज्यादा इसको देखा था कि पूरे साल आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपके स्कूल की रही, आपकी क्लास की रही, कैसे रही। ऑफ कोर्स इवेल्युएशन बगैर असेसमेंट के नहीं हो सकती, क्योंकि इवेल्युएशन जिस बुनियाद पर खड़ी होगी वो असेसमेंट होगी। तो आपकी जो असेसमेंट हो चुकी होंगी वो हेल्प करेंगी आपको अपने पूरे प्रोग्राम को इवेल्युएट करने में, पूरे कोर्स को इवेल्युएट करने में। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. So now we are going to move towards the practical side of our today's webinar, and that is sharing with you the some effective and user-friendly tools for teaching and assessing online. अब हम आपके साथ बहुत ही आसान से, जो बड़ा थोड़ी सी आप उसमें कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे, उसको देख लेंगे, आसानी आप उन्हें चला सकते हैं, बहुत मौसर भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इन्हें इस्तेमाल किया है। तो इनके जरिए आप पढ़ा भी सकते हैं और अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अगली स्लाइड के अंदर। ऑलराइट, सबसे पहला जो मैं टूल आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त टूल है, बहुत इंटरैक्टिव टूल है, और ये मैंने खुद बहुत इस्तेमाल किया है। और ये एक ऐसा टूल है जिसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, जैसे आप अपना लेसन शुरू करते हैं, शुरू में आप चाहते हैं बच्चों की तवज्जो आपकी तरफ आ जाए, तो आप कुछ सवालात बनाते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, और एक वार्म अप एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है वार्म अप एक्टिविटी करवाने के लिए और ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। इवन आप इस पे सेशन के दौरान भी, जैसे आपने कोई लेसन पढ़ाया, बीच में आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, वो आप इस पे कर सकते हैं, और बच्चे वहां पर अपने आंसर जो है वो पोस्ट करेंगे, और रियल टाइम में आप उसको देख सकते हैं। रियल टाइम में लोग लिख रहे होंगे और आपको उनके जवाब नजर आ रहे होंगे, एक वॉल आपके सामने। दिस इज कॉल्ड पैडलेट वॉल। आई होप ये आप देख सकते हैं स्क्रीन। padlet.com वेबसाइट है, और ये मैं अभी आपके सामने लाइव करूंगा, और ये मैंने padlet.com को यहीं से कॉपी कर लिया है। अब आप देखें, मैं यहाँ पर URL इसका डालता हूँ, padlet.com। सिंपल, अगर आप गूगल पे भी padlet.com लिखेंगे तो पहला आपके पास जो लिंक आएगा वो Padlet का आएगा। ये अब आप देख सकते हैं Padlet की जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने है, कि इनका होम पेज है। यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जॉब, वाई Padlets, फॉर स्कूल, फॉर बिजनेस, लॉग इन। तो अब हम सबसे पहले, चूंकि हमारा अकाउंट आपका नहीं बना हुआ, मेरा अपना अकाउंट बना है, लेकिन मैं आपके सामने एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा, तो उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं साइन अप पे, तो ये फ्री है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लिमिट होती है तकरीबन, जब आप अंदर जाएंगे तो तकरीबन 5 वॉल्स आप अपनी बना सकते हैं। अगर आप मजीद बनानी है वॉल्स, तो आप फिर अपनी पिछली वॉल्स को आर्काइव कर दें या डिलीट कर दें, तो मजीद वॉल्स बना सकते हैं। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है साइन अप विद गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आपकी, तो आप गूगल के साथ कर लें, बजाय इसके आप इधर जाएं, पूरा आपकी गूगल जीमेल आईडी होगी, तो आप साइन अप विद गूगल पे करें, और आपको यहाँ पर अपनी आईडी डालनी होगी। जैसे मैंने आईडी डाली है, तो आई होप, मैं देखता हूँ कि अगर ये मेरा अकाउंट पहले बना हुआ होगा तो फिर ये साइन इन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट साइन इन हो सकते हैं गूगल से। आपका जो जीमेल का अकाउंट है उसी का पासवर्ड यहाँ पर डालें, और देन यू कैन एंटर। तो ये बड़ा सिंपल सा है, आई होप कि इसमें आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, बेसिक का और प्रो का। तो आप बेसिक इस्तेमाल करें। देखें, जैसे मैं आपको बात कर रहा था 5 की, तो ये 3 है अभी, और इसमें कम हो गई है। 3 Padlets की आपके पास गुंजाइश है, सिलेक्ट करें इसको आप। लेकिन प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि आप पिछली को आर्काइव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास देखें ऑप्शन है, मेक अ Padlet, ज्वाइन अ Padlet, गैलरी, अपग्रेड। ज्वाइन अ Padlet ये कि किसी ने अपने Padlet का लिंक आपको दिया है, तो वो आप उसको लिंक को फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप भी Padlet बना लेंगे तो आप भी लिंक किसी के साथ शेयर करेंगे। तो ये मेक अ Padlet, मैं ये ऑप्शन को पिक करता हूँ, ये प्लस करता हूँ उसे। ठीक है, अभी आप बस बहुत सारे ऑप्शन है कि किस बैकग्राउंड पे आपने बनाना। तो मैं सिंपल वॉल लेता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरे पास एक वॉल आ गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट पे आप देखें, यहाँ आप अपनी जितना भी आपको यहाँ मॉडिफिकेशन करनी है, कोई आपने इसमें डेटा एंट्री करनी है, आप कर सकते हैं। आपको जो नाम रखना रखें। अब टाइटल आपने रखा, ये देखें राइट पे आप देख सकते हैं, सीधे हाथ पे कर्सर में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर टाइटल लिखा। अब मिसाल के तौर पर मेरा लेसन है, तो मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैंने टाइटल का नाम रखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वार्म अप। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं।
यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप ये आपके ऑप्शन आप लिख लें फॉर एग्जांपल, और मैं साथ में नोट भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अब वार्म अप एक्टिविटी, अब मैं चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपसे कुछ इस पे मैं कमेंट लूँ, तो मैं ऐसी कोई अब एक चीज़ रखता हूँ कि आप लोग कुछ उस पर कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं टाइटल लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वन लाइन ऑन कोविड, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप कोविड-19 पे कोई भी एक लाइन लिखें, यानी अपना आपका क्या, आप कैसे देखते हैं कोविड-19 को, एक लाइन में लिखें, ठीक है। सो मैं यहाँ से लेसन 1 वाली बात भी हटा देता हूँ। जस्ट दिस इज अ वार्म अप एक्टिविटी, प्लीज राइट नेम, योर नेम बिलो योर आंसर्स, ठीक है। स्टॉप किया। या आप मजीद इसको आप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपीयरेंस बदल सकते हैं, ठीक है। और ना भी करें तो सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं। ये आपके पास इसका लिंक है, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। जब आप कॉपी करेंगे तो ये आपका लिंक कॉपी हो गया है। अभी कहीं भी आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं, वर्ड के डॉक्यूमेंट में, यूआरएल पे कहीं भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आपका, यहाँ मैंने प्लस किया, अगर आपका व्हाट्सएप चल रहा है तो व्हाट्सएप की वॉल आपकी आए तो कंट्रोल वी कर दें आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे, तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ मजीद ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। अब ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें कि भाई खुद ब खुद जिस आईडी से कोई बंदा आया है उसका नाम लिखा हुआ है, एट्रीब्यूशन आ रही हो कि किसने कमेंट किया है, यानी मैंने तो यहाँ रिक्वेस्ट की है कि आप नाम लिखें, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जिस वो आईडी से आ रहा है वो आईडी पता चल जाए, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो उनकी आईडी खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये पोस्ट पोजीशन है फर्स्ट क्लास, इसमें कोई भी, अब यहाँ अगर आपने व्यूअर्स को अलाउ करना है कमेंट करने के लिए, कि एक तो ये कि आपने सबने कमेंट कर दिया, अब मैं अलाउ भी कर सकता हूँ कि और आपके कमेंट में कमेंट कर दे तो मैं इसको बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूँ। रिएक्शन अगर मैं अलाउ करना चाह रहा हूँ कि किसी ने पोस्ट किए तो कोई लाइक का रिएक्शन कर सके, वोट कर सके, स्टार दे सके, तो मैं यहाँ से रिएक्शन भी दे सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं नन कर दूंगा। वोट का ऑप्शन एक रख देते हैं ताकि थोड़ा सा आप देख लें। रिक्वायर अप्रूवल, रिक्वायर मॉडरेटर टू अप्रूव, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी इस पे पोस्ट बगैर अप्रूवल के ना करें तो आप ये खोल सकते हैं, यहाँ पर जितने भी फिल्टर्स लगे हैं तो आप ये लगा सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट किया, ठीक है, तो यू आर ऑल सेट, पोस्ट टू योर हार्ट्स कंटेंट, स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है। अब ये जो वॉल है आप खुद यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, इस तरह का प्लस का निशान आपके पास आएगा सेलफोन पे भी, और अगर आप पीसी पे आते हैं तो आपने ये क्लिक करना है राइट से। तो अब जैसे मैंने टाइटल में अपना नाम लिखा शर्जील, और मैंने लिखा वन लाइन में, इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। अब यहाँ आप देखें मेरे पास ऑप्शन है, मैं कुछ अपलोड भी कर सकता हूँ, पिक्चर भी लगा सकता हूँ, कोई पिक्चर मैं लगाना चाह रहा हूँ, पिक फाइल करूंगा तो मैं पिक्चर भी पोस्ट कर सकता हूँ, कहीं से भी उठाकर लगा सकता हूँ, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं, स्नैप भी ले सकता हूँ, और ये गूगल से भी डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ, अटैचमेंट को लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल पोस्ट कर दें, आपकी पोस्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी चलेगी। अब लोग आएंगे इसको वोट कर सकते हैं यहाँ से,